Yes. Everyone visible the screen, na? Yes, ma'am. Yesterday we calculate the gross annual value of Mr. N. He has 3 houses, right? So first house, second house, and third house. Okay. Construction period is given, both means all 3 houses, and construction completed period also given. Okay. So here, yesterday we don't understand how to calculate the gross annual value. Okay. Here, just keep in your mind like that. The actual received amount is 3,50,000, 1,90,000, and third one is self-occupied, so it will not calculate it. Second one is standard rent. It will give 4,50,000 and 4 lakhs. Third one is not giving. And a municipal value is 6 lakhs. Third one is second one 1,90,000 and 2,78,000. Okay. And other expenses are given like municipal taxes, cost of repairs, collection charges, insurance premium, and all. Okay. So let's we calculate our gross annual value. Okay. Yes. Here are given like Mr. N reside in Bombay for the month during the previous year in connection with his business, and for all these months the house remained vacant. So during the period of his stay in Delhi, he did not occupy any other houses of his own. So compute Mr. N income from house property for the assessment year 1920. Let's see. First, we have make all 3 columns of all 3 houses, first house, second house, third house. Okay. But here, when we calculate gross annual value, 1 second, before yesterday we have seen some rules and regulations. Okay. Some theories. Like that, to conclude, first step, if you calculate gross annual value, which will be the maximum of municipal value or fair rent, but restricted to standard rent. It means अगर आपका म्यूनिसिपल वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फेयर रेंट भी दिया हुआ है और स्टैंडर्ड रेंट भी है, तो whichever is less, ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया है आपको, तो सिर्फ आप म्यूनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट में से whichever is less को लेना है. Got it? या स्ट्रिक्टली दिया हुआ है, ठीक है. सो सेकेंड वन दिया है कि however if the actual rent received or receivable exceeds such amount, then the actual rent so received or receivable shall be the gross annual value. ये कब दिया होगा? जब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होगा, तो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू whichever is, उसमें हमें कैलकुलेट करना है हाईएस्ट मैक्सिमम. गॉट इट? तो हमारे प्रॉब्लम में जो हम कल देख रहे थे, उसमें हमें क्या दिया है? फर्स्ट हाउस का एक्चुअल रेंट रिसीव दिया है 3,50,000, सेकेंड हाउस का 1,90,000. स्टैंडर्ड रेंट फर्स्ट केस में 4,50,000 एंड सेकेंड केस में 4 lakhs. एंड म्यूनिसिपल वैल्यू फर्स्ट केस में दिया है 6 lakhs एंड सेकेंड केस में 1,90,000. अभी हमें एक्चुअल रेंट रिसीव तो लेस ही है 3,50,000 एंड सेकेंड में 190, तो हम छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट दिया है. तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है यहाँ पे? 4,50,000 और म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? 6 lakhs. तो पहले केस में विचेवर इज लेस, कौन सा ज्यादा है इसमें? स्टैंडर्ड रेट. तो हमें बोला गया है कि अगर रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेट, अगर आपको स्टैंडर्ड रेट दिया है तो आपको स्टैंडर्ड रेट को ही लेना है, ठीक है, और वो कम भी है ना, विचेवर इज लेस. तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट लिया. सेकेंड केस में क्या है? सेकेंड केस में आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 1,90,000 है, स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे कितना है? 4 lakhs है, ज्यादा दिया है, और म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है? 1,90,000. तो इन दोनों में विचेवर इज लेस
1,90,000. Got it? Yes. Yes, ma'am. Yes. Whichever is less, 1,90,000 हमें यहाँ पे लेना है. ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कल जैसा किया था. तो पहले हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिया, पहले केस का 4,50,000 पूरा ही लेना है. ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड रेंट है ना. यहाँ पे हमारा अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो गया, 4,50,000, which is given in our problem on the base of standard rent. So when we solve the problem, that time we calculate gross annual value and we mention gross annual value of first house is 4,50,000 and second house gross annual value which is given in problem 1,90,000. Got it? Second one, less municipal taxes. ठीक है, इस our problem is given municipal taxes, it is 60,000 and 19,000. So we'll take here the 60,000 and 90,000. After that we calculate both. Okay, we less the 4,50,000 minus 60,000, it comes 3,90,000. 1,90,000 less municipal value 90,000, it comes 1,71,000. Okay, everyone got it? सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Next, less standard deductions. Less standard deductions कितना है? 20 अंडर सेक्शन 24 में 30%. ये एवरी प्रॉपर, कल मैंने आपको बोला था देखने के लिए, आपने देखा क्या? आज के करंट स्लैब में कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन? 30% ही है. ठीक है, अभी तक वो रेज नहीं हुआ है. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रॉपर्टी का कितना है? 30%. अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो 3,90,000 आया है फर्स्ट हाउस का, उसका 30% कैलकुलेट करिए. आता है क्या? 1,17,000. Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट बोरोड दिया हुआ है ना. ये देखिए यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिनोवेशन ऑफ हाउस. ठीक है, ये तो आएगा ही. ये कितना है? 24,000 है. सेकेंड हाउस का 30,000 है. ठीक है, सेकेंड हाउस का 30,000. ये चलिए यहाँ पे ले लिया हमने. ठीक है, कैलकुलेट करिए, दोनों का प्लस करिए. 1,17,000 24,000, इट कम्स 1,41,000. आता है क्या? देखिए 1,41,000. Yes, ma'am. गुड. अभी आपको निकालना है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो 3,90,000 माइनस 1,41,000, इट कम्स 2,49,000. आया है क्या? देख लीजिए. Yes, ma'am. ओके, सेकेंड हाउस का भी वैसे ही करिए. सेकेंड हाउस का कितना है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस? कितना है? यस, 30% निकालिए. 1,71,000 के 30% कैलकुलेट करिए. Yes, ma'am. 51,300. 300. यस. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कितना है? 30,000 दिया है, तो ले लीजिए 30,000. इनका टोटल कीजिए दोनों का, कितना आता है? 81,300 आता है क्या? Yes, ma'am. अभी 1,71,000 माइनस 81,300, 89,700. Yes, ma'am. नाउ हम अभी थर्ड का देखेंगे. थर्ड में हमें क्या बोला है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है. मींस वो वहां पे खुद रह रहा है ना, या फिर स्टे कर रहा है, व्हाटएवर. तो इसमें एक्चुअल रेंट भी सवाल ही नहीं उठता. वो खुद रह रहा है तो रेंट का सवाल नहीं है. स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं रहेगा क्योंकि वो खुद वहां पे स्टे कर रहा है, यूज कर रहा है. अभी उसका म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2,78,000.
ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसने सेल्फ पर्पस के लिए यूज किया है। तो इसका म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो यहाँ पे दिया है 1,20,000, लेकिन यहाँ पे दिया है कि पेड बाय ओनर, तो ये 1,20,000 इसने पेड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं, मतलब स्टैंडर्ड रेंट और ये तो हमें यहाँ पे करना ही नहीं है, क्योंकि उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और वो एज यूजुअल जो भी रूल्स है उसके हिसाब से क्या कर रहा है, पे कर रहा है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ फोकस करना है ये चीज पे कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिनोवेशन ऑफ हाउस। ठीक है, इंटरेस्ट जो भी है ऑन लोन टेकन फॉर रिनोवेशन ऑफ हाउस, वो कितना दिया है इसने, 60,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 60,000 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 60,000 आना चाहिए। ठीक है, करेक्शन कर लेती हूँ मैं। ठीक है, 60,000 पूरा ही आएगा ना, क्योंकि वो तो उसको पे करना ही है, भले ही उसने रिनोवेशन के लिए लिया है। ठीक है, 60,000, यस, तो ये 60,000 आएगा टोटल, बाकी कुछ तो है नहीं, बिकॉज ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अभी हमें फर्स्ट और सेकंड का कैलकुलेशन करना है। वो क्या है, फर्स्ट हाउस का कितना आया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो आया है 2,49,000। सेकेंड हाउस का आया है आपका 89,700, और अनरियलाइज रेंट नहीं दिया है, अगर दिया रहता तो हम उसमें ऐड करते थे, यहाँ पे भी करेक्शन करना होगा। 60,000, यस। सो और अभी रिकवर्ड, ठीक है, अनरियलाइज रेंट का एक ऑप्शन उन्होंने दिया है कि अनरियलाइज रेंट अलाउड इन द पास्ट, पास्ट का था जो एक्सक्यूज मी, जो ये साल में, ये असेसमेंट में या फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ है, रिकवर्ड हुआ है, वो कितना था, 20,000। ठीक है, फर्स्ट हाउस का दिया है उन्होंने, तो हम यहाँ पे रिकवर्ड रेंट ले लिया इसका 20,000। ठीक है, तो 20,000 लेने के बाद उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें कैलकुलेट करना है, उतना ही 30%। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करिए अनरियलाइज रेट का, क्योंकि वो लास्ट का था जो हमें ये साल में मिला है, जो हमने रिकवर किया है। ना आता है 30% 20,000 के, मैम 6,000। आता है, ठीक है, तो 20,000 माइनस 6,000, 14,000। यस मैम। तो आपका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब तीनों हाउस का मिला के कितना आता है, यहाँ पे अभी टोटल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे 30,000 60,000 लिया है, कितना आता है कैलकुलेट करिए, 2,49,000 प्लस 89,000 माइनस 60,000, कब आना चाहिए, कितना आता है, 3,99,700। 3 लाख माइनस करना है 16,000 ना, 60,000 माइनस करना है आपको, देन 14,000 भी माइनस करना है, कितना आता है, 2,64,000। यस, 2,64,700। यस मैम। माइनस तो माइनस ही जाएगा ना, वो थोड़ी है वो। ठीक है, इस तरह से आपका प्रॉब्लम ये समझ में आया, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अगर स्टैंडर्ड रेट दिया है प्रॉब्लम में, ओके, if standard rent is given then you have to, and municipal value is given then you have to
कंपाइल बोथ ऑफ देम, ओके, उसमें आप कंपेयर करोगे विच एवर इज लेस और वही अमाउंट आपको लेना है। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं एक और। Mr. X is owner of residential house whose construction was completed on 31st August 1995. It has been laid out from 1st December 1995. So for residential purpose, it's particular for the financial year 18-19 are given below. अभी वैल्यूएशन दिया हुआ है, कितना है 55,000 और एक्सपेक्टेड रेट पर एनम कितना आता है 60,000 आता है पूरे 12 साल का, 12 महीने का, सॉरी। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है एज पर कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से 6,000 पर मंथ, मतलब 60,000 ही आ गया 12 मंथ का। एक्चुअल मंथली रेट जो है वो भी उतना ही है 6,000। आपको कंफ्यूज करने के लिए ना बहुत कुछ देंगे, बट just keep in your mind the rules, what is the rules, and you have to calculate accurately. If it's given in month, then you have to calculate it in per annum, okay? Financial year का हम जो calculate करते हैं वो पूरा full. Then municipal taxes including rupees 5,000 paid by the tenant, okay? ये भी paid है 15,000. Then वाटर सीवेज बेनिफिट ये तो हम लेते नहीं है, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट डिस्प्यूटेड इन कोर्ट, ये तो हम लेते ही नहीं है। फ्री इंश्योरेंस पेएबल ये भी हमारे इसमें नहीं आता। देन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, द इंटरेस्ट हैज बीन पेड आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एट द नॉन रेसिडेंट agreed paid income tax on such interest directly to the government. ये तो हमने जब हमने फर्स्ट यूनिट लिया था तो ही हमने आपको बताया था कि आप कहीं पे भी रहिए, आपका प्रॉपर्टी जहां भी है ना, आप 6 मंथ इंडिया में रहते हैं या 6 मंथ अब्रॉड में रहते हैं, डजंट मैटर, वेयर एवर यू और आपको पे करना ही है। आपका जहां जहां भी कुछ है आपको पे करना ही है। इंडिया में भी करना है, इंडिया में है तो, फॉरेन में है, अब्रॉड में है तो अब्रॉड में भी पे करना है, दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे भी उसने पे किया है 10,000, देखते हैं। देन लीगल चार्जेस फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट 4,000, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस incurred in respect of the lease agreement of the house, it is 2,000, okay? So the unrealized rent of the earlier years amounted to rupees 10,000, but a deduction claim so far was only rupees 7,000. 10,000 था लेकिन डिडक्शन करके रिकवरी के टाइम जो भी आया होगा उसका 7,000. नाउ देयर इज अ रिकवरी ऑफ 8,000 फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट्स, ये चलता ही रहता है। तो 8,000 से रिकवर हुआ है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, हायर ऑफ द फॉलोइंग टू, ठीक है? अब इसमें हम देखेंगे कि हायर कौन सा है। चलिए क्या है, क्या दिया है इसमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन, पहले इसमें कितना दिया है 55,000, कमी है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि फेयर रेंट है ना, अभी हम म्युनिसिपल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पे हमें फेयर रेंट दिया है। तो फेयर रेंट कितना दिया है 60,000, ठीक है, 5,000 पर मंथ के हिसाब से। अभी स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है एज पर कम, वो भी 6,000 पर मंथ है ना। तो 6,000 पर मंथ इंटू 12 करिए, कितना आता है 72, कितना आता है 72,000, राइट। और हमें एक्चुअली मंथली रेंट जो है वो कितना मिल रहा है 6,000 पर मंथ ही मिल रहा है।
है ना, मतलब 72। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है हमें, है ना। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है यहाँ पे 72, और म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 60, और यहाँ पे हमें फेयर रेंट भी दिया हुआ है। तो फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज हाईएस्ट, तो हम लेंगे स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, पहले प्रॉब्लम में हमें फेयर रेंट नहीं दिया था, रिसीवेबल दिया था, राइट, कम था, तो हमने म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को कैलकुलेट किया। यहाँ पे हमें क्या दिया है, फेयर रेंट दिया है पर एनम जो कि 60,000 है, और स्टैंडर्ड रेंट दिया है 6,000 पर मंथ जो कि कितना आता है 72,000। तो विच एवर इज हाइयर, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड रेंट को प्रीफर करना है। आई बात समझ में। हम और प्रॉब्लम्स लेंगे छोटे छोटे, तो आपको क्लियर होगा प्रैक्टिस से। ठीक है, और एक्चुअल रेंट भी कितना है अपना जो मिल रहा है 72,000 ही मिल रहा है। तो चलिए स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे ले लीजिए आप, कितना है जो कि हायर है, तो 72,000 लिया। अभी म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 55,000, फेयर रेंट कितना है आपका 60,000। तो whichever is more but restricted to standard rent, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट दिया है, तो म्युनिसिपल वैल्यू जो है और फेयर रेंट कितना आ रहा है यहाँ पे 60,000 है। यहाँ पे देखो फेयर रेंट 60,000 लिया है और म्युनिसिपल वैल्यू 55,000 है। तो जो भी आपका म्युनिसिपल वैल्यू आएगा वो हमें फेयर रेंट जो ज्यादा है विच एवर इज हाइएस्ट, तो हमने यहाँ पे 60,000 लिया विच एवर इज हाइएस्ट। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू। अभी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया। म्युनिसिपल वैल्यू मीन्स अपना जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है ना, विच एवर इज हायर, तो हमने यहाँ पे आउटर कॉलम में 72,000 दिखाया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, समझ में आ रहा है? इसमें आपको सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करना है। आपको थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स देंगे, जैसे फेयर रेंट है, कभी अनरियलाइज रेंट दे देंगे और आपको बोलेंगे कि कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, कभी कभी आपको पांचों दिए रहेंगे, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड अनरियलाइज रेंट। देन यू हैव टू आस्क कैलकुलेट GAV, ग्रॉस एनुअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट कीप इन योर माइंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। Okay, yes, Yes, ma'am. yeah, thank you. Now second portion, less municipal taxes. Okay, municipal taxes कितना है, प्रॉब्लम में कितना दिया है म्युनिसिपल टैक्सेस? हाँ, म्युनिसिपल टैक्सेस क्या दिया है, इंक्लूडिंग 5,000 पेड बाय टेनेंट। तो टेनेंट का पेड किया हुआ म्युनिसिपल टैक्स हमें क्या करना, हमें तो हमारा पे करना है ना। ओनर पे करेगा ना म्युनिसिपल टैक्सेस, बिकॉज द प्रॉपर्टी इज ओन बाय ओनर, ओनर के नाम से होगी, नेम ऑफ ओनर। तो हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है 5,000 पेड बाय ओनर, तो वो हम हटा देंगे, माइनस करेंगे, और एक्चुअली हमने कितना पे किया है 10,000। सो हमने यहाँ पे लिया कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय 10,000, देन 72,000 में से हमने 10,000 माइनस किया, तो हमारा जो नेट एनुअल आया वैल्यू आया वो आया 62,000। कितना आया 62,000। नेक्स्ट वही हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालिए, 62,000 पे 30% कितना आता है, 18,600 आता है। Yes. नेक्स्ट, आउट ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, अब लेस करना है उसमें, सॉरी ऐड करना है, रिकवरी हुआ तो कितना हुआ है रिकवरी अनरियलाइज रेंट का,
दिया है, देखिए अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर ईयर्स अमाउंटेड यहाँ पे नीचे नोट दिया हुआ है, देखिए द अनरियलाइज रेंट ऑफ द अर्लियर years amounted rupees 10,000 but the deduction claim so far was only of rupees 7,000 and now there is a recovery of 8,000 from the defaulting tenant. तो हमने यहाँ पे अनरियलाइज जो रेंट है आउट ऑफ रिकवरी, ठीक है, वो कितना लिया है यहाँ पे 5,000 ही लिया है, ठीक है। अब 5,000 हमने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो म्युनिसिपल टैक्सेस में जो दिया हुआ है कि उसने पेड किया हुआ है, गॉट इट। तो यहाँ पे हमने ये वाला नहीं दिया जो यहाँ पे दिया हुआ है कि अनरियलाइज रेंट ऑफ अर्लियर 1,000 but deduction claims was only rupees 7,000. Now there is recovery of rupees 8,000 from the इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट उसने ऑलरेडी वहां पे कितना पे किया था टैक्सेस देते वक्त 5,000 उसने टैक्स पे, हो सकता है ओनर यहाँ पे नहीं रहता होगा या जो भी है, ठीक है, तो वो हमने उसके रेंट में एडजस्ट किया, तो वो ऑलरेडी हम जैसे हम लोग रेंट से रहते हैं तो लॉट ऑफ टाइम वी हैव पेड डिपॉजिट्स अमाउंट्स, ओके, एंड इफ यू डोंट पे आफ्टर मींस 2 or 3 months rent payment, so owner adjusted the amount with your deposits, otherwise he will refunded it whole amount. तो यहाँ पे उसने यही ध्यान में रखना है कि उसने क्या किया था रेंट, तो यहाँ पे हमारा जो रिकवरी था एक्चुअल रियलाइज रेंट का वो कितना था 5,000. So now you have to deduct 30% of standard deductions. So 5,000 less 30% of standard deductions. How much it is? 1,500. Yes. Then you have calculate your income from house property. Means आपका जो अमाउंट आया है उसमें से आप कैलकुलेट करिए। यहाँ पे 62,000 में से नेट एनुअल वैल्यू में से आपने जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो माइनस किया, आपका आया 43,300। देन ये अनरियलाइज रेंट पे जो अमाउंट आया उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट करके अमाउंट आया आपका 3,500 और लास्ट में आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया 46,900। मींस इसका कैलकुलेट किया हमने ये मिस्टर एक्स का, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम और एक देखते हैं। चलिए थर्ड में दिया है, थर्ड प्रॉब्लम, फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 एक्स सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे 2 हाउसेस का दिया है। अभी इसका जो है ऊपर में दिया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसका जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो कितना है 46,000, ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। चलिए देखते आगे। इनकम प्रॉपर्टी इनकम हाउस 1 एंड हाउस 2, ठीक है, फेयर रेंट कितना दिया है, यहाँ पे भी फेयर रेंट दिया है। चलिए फेयर रेंट कितना है 75,000 फर्स्ट हाउस का और 85,000 सेकेंड हाउस का दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड रेंट दिया हुआ है फर्स्ट हाउस का 78,000 एंड सेकेंड हाउस का भी 78,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 76,000 एंड सेकेंड हाउस का 75,000। टैक्सेस ड्यू है, म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू इट इज 13,000 एंड 14,000। रिपेयर्स जो भी होगा वो 3,500 4,700। इंश्योरेंस दिया हुआ है 2,000 एंड 3,000। लैंड रेवेन्यू पेड 2,500 4,000। ग्राउंड रेंट 1,600 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय
mortgage house 1, funds are used for construction for house 2. ठीक है, तो 14,000 फर्स्ट हाउस का दिया है। तो नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है? लेट आउट फॉर रेसिडेंस, मतलब उसने रेसिडेंस के लिए लेट आउट किया है। और सेकंड जो हाउस है वो उसने बिजनेस पर्पज से लेट आउट किया है। ठीक है, दोनों भी लेट आउट है, बट पहला जो है वो रेसिडेंशियल है और सेकंड है बिजनेस। लेट्स सी, डिटरमाइन द टैक्सेबल income of X for the assessment year 1920. अभी इसमें से हायर ऑफ द फॉलोइंग टू लेना है हमें। चलिए, हमें क्या क्या दिया है? एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। अभी इसमें हमें ये प्रॉब्लम में हमें स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है। ठीक है, तो और अनरियलाइज रेंट भी नहीं दिया है। ठीक है, अभी हमें दिया है यहाँ पे और एक्चुअल रेंट तो ही दिया है, व्हिचएवर इज हायर, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आया हमारा? कितना लिया है हमने? व्हिचएवर इज हायर, एक्चुअल रिसीव्ड। अभी यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है एक फेयर रेंट 75,000 दिया है। तो उसके बाद जो एक्चुअल रेंट है वो हमारा है 78,000 और म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? 76,000। तो एक्चुअल जो रेंट है वो हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, या तो आप ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे म्युनिसिपल वैल्यूएशन आपको पता है 76,000 और ये तो देना ही है प्रॉब्लम में म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अभी फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट, इसमें भी आप ये करते व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, पहले प्रॉब्लम में भी आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते थे, दोनों में भी रूल वही रहेगा। ठीक है, बट सिर्फ पता होना चाहिए, है ना? अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे आपके कंक्लूजन्स क्लियर होंगे। तो व्हिचएवर इज हाईएस्ट, हमने यहाँ पे एक्चुअल रेंट को लिया है। चलिए लिखिए यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपने लिया 78,000 और सेकेंड हाउस का आपका है, यहाँ पे देखिए सेकेंड हाउस में क्या है आपका? फेयर रेंट कितना है? 85,000 और एक्चुअल रेंट है 75,000 एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 75,000। तो यहाँ पे व्हिचएवर इज हाईएस्ट 85,000। गॉट इट? हेलो? Yes, ma'am. यस, गुड। चलिए कैलकुलेट करिए। अभी हमने हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो निकाल लिया, जो प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया था, लेकिन हमने डिस्कस करके वो फाइंड कर लिया। अभी म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस जो है ड्यू 13,000 एंड 14,000। ठीक है, इसका कुछ पीरियड दिया है? नहीं दिया है, असेसमेंट ईयर 1920 का ही दिया है। ओके, तो म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू दिया हुआ है, मतलब है, अभी पे नहीं हुआ है, टाइम नहीं हुआ है उसको पे करने का। पेड लिखा होता म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो हमने उसे लिया होता, लेकिन ड्यू है ना, मतलब देना पड़ेगा, अभी तक दिया नहीं है। पेड लिखा रहता तो हमने लिया, इसलिए हमने यहाँ पे लिया ड्यू नॉट अलाउड, है ना? दोनों इसमें लिखा हुआ है ड्यू नॉट अलाउड। अगर यहाँ पे पेड, इसके पहले हमने पेड लिया था कि भाई म्युनिसिपल टैक्सेस पेड या म्युनिसिपल टैक्सेस डायरेक्टली दिया था, तो हमने उसको पेड कंसिडर करके पे किया था। गॉट इट? पेड बाय ओनर, देखिए क्लियरली दिया था म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्सेस इंक्लूडिंग पेड, है ना? तो ये भी एक बात आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे ड्यू दिया है, मतलब देना पड़ेगा या देना है, लेकिन पेड नहीं किया है, इसलिए हमने लिखा कि ड्यू नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट हमारा नेट एनुअल वैल्यू उतना ही आएगा फिर, है ना? 78,000 एंड 85,000। चलिए नेक्स्ट डिडक्शंस पे आ जाइए। सेम डिडक्शंस अंडर 24 के हिसाब से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हाउस पे निकालिए 30%, सेकेंड हाउस पे भी सेम। कितना आता है बताइए? 78,000 पे 30% एंड 85,000 पे 30%।
आ रहा है? Yes, ma'am. 23,400. एंड 85,000 पे 25,500. 500. यस. नाउ सेकंड जो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. अभी इसमें जो दिया है इंटरेस्ट ऑन सेकेंड हाउस का दिया है ना. इंटरेस्ट ऑन बोरोड बाय मॉर्गेज हाउस वन फंड्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन. अच्छा, मतलब फर्स्ट हाउस को मॉर्गेज करके सेकेंड हाउस के लिए उन्होंने लोन दिया हुआ है बिकॉज ऑफ बिजनेस पर्पज है. तो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं मिलता था ना. ओके, तो वो सेकेंड हाउस के लिए लिया हुआ है, फर्स्ट हाउस के लिए नहीं लिया है. तो फर्स्ट हाउस में हमने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का अमाउंट मेंशन नहीं किया, बट सेकेंड हाउस में हमने किया है. जो कितना दिया है प्रॉब्लम, 14,000. ओके, तो चलिए कैलकुलेट करिए, आपका निकालिए. मतलब पहले तो फर्स्ट हाउस का निकालिए. 78,000 में से 23,400 माइनस करिए. 54,600 आते हैं क्या? Yes, ma'am. यस. नेक्स्ट सेकेंड हाउस का आपने जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाला था प्लस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ऐसे दोनों का प्लस करके आपका टोटल अमाउंट जो आता है डिडक्शन का वो आता है 39,500. तो 85,000 जो आपका नेट एनुअल वैल्यू आया है उसमें से आप डिडक्शंस माइनस करिए 39,500. तो 45,500 आता है क्या? Yes, ma'am. अभी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालिए. कितना है? फर्स्ट का आपका आता है 54,600 एंड सेकेंड हाउस का आपका आया है 45,500. ठीक है, तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया यहाँ पे? 1,100,000. ठीक है, अभी आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस भी दिया है जो आपको ऐड करना है. ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑलरेडी दिया हुआ है. आपका कितना है प्रॉब्लम में? 46,000. तो इनकम है वो तो हमें तो लेना पड़ेगा ना, शो तो करना पड़ेगा. तो हमने कर दिया शो. इसको कितना आया आपका? 46,600. दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो आपका टोटल इनकम जो आता है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में पूछा ही गया है कि टोटल इनकम कैलकुलेट करना है ना. देखिए इनकम टैक्स तो वो आता है आपका 1,46,100. ठीक है, तो इस तरह से हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करने हैं. एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क देती हूँ या दो प्रॉब्लम आप ट्राई करिए. ठीक है, तो हमने देख लिया अभी. ये भी हो गया हमारा. हाँ, अच्छा अभी ये देखिए. R has a house property situated in Mumbai, okay, which has 2 units. Unit 1, दो मतलब हाउस 1 हाउस 2 हो गए, तो उसने यूनिट के हिसाब से दिया है. यूनिट 1 has a floor and area of 70%, whereas the unit 2 has a floor area of 30%. Both the units were self-occupied by the assessee. So as the assessee was allowed a rent-free accommodation by his employer. ठीक है, उसके एम्प्लॉयर से मिला हुआ है उसको. So कब मिला था? 1 अप्रैल 2018 को. And he vacated and let out unit 1 at a rate of ₹11,000. ठीक है, per month. And unit 2 was let out for ₹4,000 per month. So unit 1 remained vacant for half months, 1.5 months, whatever. So whereas unit 2 was vacant for March 19 का. So other particulars of the property are as follows. पहला दिया है म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है 1,50,000. फेयर रेंट दिया है 1,70,000.
देन आपका स्टैंडर्ड रेंट भी दिया हुआ है 1,60,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड एंड ग्राउंड रेंट ड्यू है। चलिए बनाइए, इसमें लगाइए अपना, थोड़ा सा सोचिए क्या किया है यहाँ पे। बताइए क्या किया है यहाँ पे। Anyone? ये आप होमवर्क करिए, ठीक है, आएगा आपको, थोड़ा सा सोचना है उसमें, ज्यादा हार्ड नहीं है प्रॉब्लम। Okay, ma'am. ये भी एक है, ये तो करिए, अगर नहीं आए तो हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले Okay, एक बार ma'am. करिए आप, नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा एक है अच्छा वाला, चलो ये वाला देखते हैं। Cost accountant in HIFI Limited, Mumbai, and he gets rupees 18,000 per month, okay, as salary. So he owns 2 houses, one of which has been let out to the employer company, okay, which in turns was provided to him as a rent-free accommodation. So determine the taxable income of R for assessment year 1920 after taking into account the following informations relating to property income. हाउस 1 और हाउस 2 ये एम्प्लॉयर के है, वो यूज कर रहा है। चलिए, फेयर रेंट दिया है एज पर कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट 60,000 और सेकेंड हाउस का 1,80,000, 82,000। एक्चुअल रेंट दिया है 63,000, 1,84,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है 61,000, 1,85,000। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है 14,000, 40,000। तो रिपेयर्स दिए 3,500, 7,000 इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, लैंड रेवेन्यू दिया है, ग्राउंड रेंट दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम पड़ी है। प्रॉब्लम में क्या दिया है कि आर इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, वो एक कंपनी में कॉस्ट अकाउंट है मुंबई में, एंड ही गेट 18,000 पर मंथ सैलरी, ओके। ही ओज 2 हाउसेस, उसके खुद के 2 हाउसेस है, ठीक है। वन जो हाउस है विच हैज बीन लेट आउट टू द एम्प्लॉयर कंपनी, ठीक है, उसने क्या किया, कंपनी के ओनर को ही रेंट से दे दिया। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अगर किसी को लेट आउट करना है तो वो प्रिफर करते हैं कि यार मेरा है खाली आप दे दो, है ना। तो वो कंपनी के एम्प्लॉय के लिए उसने लेट आउट कर दिया। तो एम्प्लॉयर कंपनी विच इन टर्न वाज प्रोवाइडेड टू हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशंस, ओके। तो रेंट फ्री अकोमोडेशंस के हिसाब से मतलब एम्प्लॉयर पे करेगा रेंट, मतलब एम्प्लॉयर के थ्रू
मिस्टर जो भी है ये ABC, यस, आर को वो पैसा मिल रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशंस का। तो यही है कि आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है उसे। तो अभी इसमें ये प्रॉब्लम दिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है नहीं, हाउस वन फंड्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टू। जो भी हाउस वन जो उसने रेंट पे दिया है उसका जो भी पैसा आ रहा है रेंट पे, वो क्या कर रहा है, सेकेंड हाउस पे वो लगा रहा है। नेचर ऑफ जो ऑक्यूपेशन है लेट आउट, उसने अपने ही कंपनी में दिया है, और ये सेकेंड जो है वो उसने बिजनेस पर्पज से दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम इसका निकालेंगे, पहले बेसिक सैलरी है ना, उसका सैलरी कितना है, इनकम ही है ना, हम तो टोटल इनकम निकाल रहे, तो हमको तो सारा इनकम लेना है। तो 18,000 के हिसाब से इंटू 12 करते हैं तो इसका बेसिक सैलरी आता है 2,16,000। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वो भी एम्प्लॉयर के इसमें रह रहा होगा तो उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है, वो कितना है 32,400। ओके, अभी 32,400 कैसे कैलकुलेट किया बताइए। यहाँ पे तो हमें रेंट दिया ही नहीं है लेट आउट प्रॉपर्टी का, कैसे कैलकुलेट किया? बताइए। यस, एनीवन? कैसे आएगा, बोलेंगे नहीं तो कैसे आएगा, बोलिए कुछ तो बोलिए। देखिए यहाँ पे नोट दिया हुआ है एक्चुअली, देखिए यहाँ पे नोट दिया है जो हम पढ़ेंगे फ्री अकोमोडेशंस का, कि जब आर अपना लेट आउट कर रहा है हाउस वन टू हिज एम्प्लॉयर, जो भी उसकी कंपनी है, विच प्रोवाइड द सेम टू हिम एज अ रेंट अकोमोडेशन, so rental income received by R as a owner will be taxable as income from house property. So as he uses the house only as an employee of the tenant, the value of perquisite for rent free houses is taxable under the head of salary, है ना, हमने सैलरी में पढ़ा था कि उसको HRA मिलता है, राइट। अभी हमें HRA, क्योंकि उसमें बेसिक सैलरी दी उसलिए है कि हम उसका HRA कैलकुलेट कर सके, गॉट इट। तो HRA बेसिक प्लस DA पे करते हैं, तो हमने उसका HRA कैलकुलेट, बेसिक सैलरी कैलकुलेट की जो कि 2,16,000 आई, और अभी हमें उसका HRA भी कैलकुलेट करना है। ही इज नॉट एंटिल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ परमिसिबल अंडर सेक्शन 23(2), वो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो ओनर उसको दे रहा है, राइट। So as he occupies the house not as owner, as a subtenant of the employer company, subtenant है वो, owner कौन है, employer है। So value of perquisite in respect of rent free house, तो हमने 15% of salary को कैलकुलेट करना है, तो 2,16,000 जो आया है उसका 15% अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमारा HRA का रूल है ना। तो एज पर 15% ऑफ सैलरी कितना आता है, बेसिक सैलरी के 15% 32,400 कैलकुलेट करके देखिए आता है क्या? आया? 2,16,000 इंटू 15। यस मैम आया, पर समझ में नहीं आया मैम कि मतलब HRA इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जब दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। समझ में, देखिए प्रॉब्लम क्या दिया है वो भी पढ़ना है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स थे वो क्या थे कि सिंपल वाले थे, कि एक पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी है जो उसने लेट आउट दी है बिजनेस के लिए और रेसिडेंस के लिए, ये हमने देखे। अभी हम हमारा जो
प्रॉब्लम का लुक है वो भी चेंज हो गया है। अभी हमें देख रहा है एक सैलरी एम्प्लॉयड है, ठीक है, सैलरी एम्प्लॉयड है और उसके भी लेट आउट प्रॉपर्टीज है, मतलब उसकी भी प्रॉपर्टी है, बट फिलहाल वो कहाँ रह रहा है, कंपनी के अकोमोडेशंस में रहना है। तो हमने जो सैलरी देखा था इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या था, अब जो भी बंदा, आप हो या मैं हूं या कंपनी में काम कर रहा हो, उसे तो एचआर, और यहाँ पे तो वो कंपनी के अकोमोडेशन में ही रह रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें ना स्टैंडर्ड रेंट से मतलब है ना फेयर रेंट से मतलब है, क्योंकि उसका बेसिक सैलरी दिया है, तो हमें यहाँ पे उसका जो एक्चुअल एचआरए है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पेबल रहेगा। आई बात समझ में? यही तो लॉजिक लगाना है आपको। अगर सैलरी वाले आपको ऐसे प्रॉब्लम दे दिए कि, और उसका आपको बोल दिया कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, तो आपको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय है एज अ गवर्नमेंट कंपनी में, एज अ सेमी गवर्नमेंट कंपनी में, और साथ ही साथ उसकी भी प्रॉपर्टी जो उसने दूसरों को लेट आउट रखी है, दी है, तो वो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी भी मिल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी मिल रहा है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस भी मिल रहा है, क्योंकि उसके पास दो दो प्रॉपर्टी है, जो उसने रेसिडेंट के लिए भी दिया है, बिजनेस के लिए भी दिया है, और खुद कहाँ रह रहा है, कंपनी के अकोमोडेशन फ्री हाउस में रह रहा है, जिसका उसको एचआरए मिल रहा है। आया क्या समझ में? यस मैम। यस, तो यही लॉजिक लगाना है आपको, नहीं तो आप बिल्कुल सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम ही रॉन्ग होगा। तो पहला जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो ऐसा ही है, ठीक है, आपको सैलरी कैलकुलेट करके उसका, अभी हमने जब सैलरी पढ़ा था, तो सैलरी पढ़ा था इनकम फ्रॉम सैलरी, तब हम क्या करते थे, एचआरए हमको दिया रहता था, है ना, और अभी ये प्रॉब्लम में हमको एचआरए दिया नहीं है, तो उस टाइम जब हमें एचआरए दिया नहीं रहता है, तो उसका जो कैलकुलेशन है वो कैसा रहता है, 15%। अभी डीए भी दिया नहीं है, बेसिक प्लस डीए ऐसा कैलकुलेशन करके हम एचआरए निकालते हैं। तो एचआरए का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो 15% और 16% डिपेंड्स ऑफ द कंपनीज पॉलिसी रूल्स, ठीक है, वो लेवल के हिसाब से कैलकुलेट। अभी ये मुंबई है तो ये मेट्रो सिटी है ना, तो मेट्रो सिटी होने से हमें इसका 15% यहाँ पे कैलकुलेट किया है सैलरी के, ठीक है, तो ये आता है 30, ठीक है, इन दोनों का अगर टोटल किया तो वो आता है 2,48,400, ठीक है। अभी इसका स्टैंडर्ड डिडक्शंस निकालो, वही 30%, कितना आता है, यहाँ पे दिया है 40,000 का कुछ, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक मिनट, 40,000, इसका म्युनिसिपल टैक्स वगैरह तो नहीं दिया है, म्युनिसिपल टैक्स पेड 40,000, हाँ देखिए यहाँ पे दिया ऑलरेडी 40,000, ठीक है, यहाँ पे 14,000 और 40,000, तो जो दिया है 40,000 बिकॉज ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी के हिसाब से, वही हम लेंगे यहाँ पे 40,000 जो दिया है ऑलरेडी। तो इसका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया 2,48,000, यहाँ पे हम 30% से नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका 40,000 हम लेंगे। तो इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया 2,08,400, ठीक है। पहला जो हाउस वन है वो तो लेट आउट रेसिडेंस के लिए दिया है,
पहले जो हाउस है उसमें लेट आउट दिया है रेजिडेंस के लिए, तो इसका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे कल, तो वो है म्युनिसिपल वैल्यूएशन आएगा इसका 61,000, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो है वो 63,000, ठीक है, जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। फेयर रेंट दिया है 60,000 फर्स्ट का, एक्चुअल रेंट दिया है 63,000, सो और इसका म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 61, तो विच एवर इज हायर 63, तो एक्चुअल रेंट हम यहाँ लेंगे, ठीक है। एक्चुअल रेंट हमने लिया 63,000। देन उसका जो म्युनिसिपल टैक्सेस है ये हम हाउस 1 का कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इसका 14,000, इसके पहले 40,000 था, सेकेंड का लिया है हमने 14,000, ठीक है। इसका एनुअल वैल्यू आया 49,000। वही सेम फिर डिडक्शंस निकालो और इसका कैलकुलेशंस बना, दोनों हाउस प्रॉपर्टी का हम मर्ज करके उसका टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, ठीक है। ये आधा प्रॉब्लम हम कल देखेंगे, और जो आप दिया है उसका कॉल करिए, ठीक है। जितना आता है उतना तो करिए, ठीक है। यस मैम। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो। ओके मैम, थैंक यू।